যে দু একটা প্রভিশন ছাড়া বাকি সবগুলোই কিন্তু আমাদের বেসিক এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটকে হিট করছে। बिल तो अब बन गया है और बिल वापस होने से रहा, लेकिन उसके अंदर जो खराबियां हैं उसको हम लोग कोशिश करके हटवा सकते हैं। क्या आपको ये दिखाना भी होगा कि आप मुसलमान हैं, तो इसके क्या माने? क्या आपको दाढ़ी रखना होगा, क्या टोपी पहनना होगा, या कौन अथॉरिटी होगी ऐसी जो ये 5 साल का सर्टिफिकेट देगी? हर आदमी को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का उसको हक है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि वक्फ बोर्ड अपने कदम उठाए। हो सकता है हमारे बंगाल के इस कदम को देखकर है ना दूसरे स्टेट्स के भी है ना वक्फ बोर्ड भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कानून जब बन जाता है पूरे देश के लिए बनता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो ममता बनर्जी अगर बोलिए तो हम लोग को उस पर भरोसा रखना होगा। कोई भी अगर किसी जगह में काबिज है तो या तो उससे सेटलमेंट करके उससे रेंट लीजिए ताकि वो लीगलाइज्ड हो जाए, या उसके ऊपर में केस करिए कोर्ट का। तो फिर ये 12 साल क्या 1200 साल भी अगर हो जाए तो ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी ही रहेगा। लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जा सकती है, मस्जिदों पर, दरगाहों पर, मदारिस पर आँच आ सकती है, ये इदारे ख़त्म हो सकते हैं, ये मिट सकते हैं। ऐसी चीज़ों को उसमें से रोकना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है और केंद्र सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस शाहिदुल्लाह मुंशी साहब के अलावा राज्यसभा MP नदीमुल हक, कारी फजलुर रहमान साहब, वक्फ बोर्ड के मेंबर अफाकुज्जमा खान और मौलाना मेहर अब्बास रिजवी मौजूद थे। सभी ने कहा कि वक्फ के इस एक्ट में बहुत सारी कमियां हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इस एक्ट में शामिल कई क्लॉज को वापस लेने की मांग करेंगे। आइए सुनते हैं। উদ্দেশ্য একটাই যে আমরা এর আগে যখন ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এলো, বিল 24 এলো, আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি যে বিলে যে প্রপোজিশনগুলো ছিল আমরা পড়ে দেখেছি যে এইগুলো সবই হচ্ছে আমাদের কমিউনিটির এগেনস্টে, ওয়াকফের এগেনস্টে। সুতরাং বিলটাকে আমরা ফার্দার অ্যামেন্ড করার জন্য, বিলটাকে রেকটিফাই করার জন্য আমরা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি অ্যাট দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেভেল। কিন্তু যখন ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 25 এলো তখন আমরা দেখছি যে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন কোনোভাবেই কনসিডার করা হয়নি। ইভেন আমরা যখন জেপিসির সামনেও আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম, আমাদের যে স্পিচ দিয়েছি, বক্তব্য রেখেছি, ইন রাইটিং অ্যান্ড ওরাল সাবমিশন যা করেছি তার কোনোটাই কনসিডার করা হয়নি এবং যা বিলে ছিল সেটাকেই হুবহু ছাপিয়ে দিয়ে নতুন অ্যাক্ট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদের মনে হয় এই 8 তারিখে যে নোটিফিকেশান হয়েছে, 8 তারিখে নোটিফিকেশান হওয়ার পরে এটা অ্যাক্টে রূপান্তরিত হলো, অ্যাক্টে মডিফাইড হলো। এই অ্যাক্ট কিন্তু আমাদের কোনোভাবেই হেল্প করবে না, বরং ওয়াকফের ক্ষতিই হবে। শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল না, থ্রু আউট ইন্ডিয়াতে এর একটা ইম্প্যাক্ট হবে, ক্ষতি হয়ে যাবে। তো সুতরাং আমরা এখন একমাত্র রাস্তা হচ্ছে যে কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া। যে এই আইন যেটা হয়েছে, আমার মনে হয় যে এই আইনের বেশিরভাগ অংশটাই মানে হিট করছে কনস্টিটিউশনকে, কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনের এগেনস্টে হয়েছে এবং প্রভিশনগুলো আলট্রাভাইরাস টু দি কনস্টিটিউশন। যদি এই একটাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় জুডিশিয়ারি সঠিকভাবে এর মূল্যায়ন করবে এবং সঠিক ডিসিশন নেবে। আর জুডিশিয়ারিতে যাওয়া ছাড়া এখন আপাতত আমাদের সামনে আর কিছু নেই। সেই জন্য আমরা আজকের বোর্ডের মিটিং ছিল, সেই মিটিংয়ে আমরা রেজলিউশন নিয়ে নিয়েছি যে আমরা আপাতত এই অ্যাক্টটাকে চ্যালেঞ্জ করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোরামে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রসিডিং দাখিল করব। যেখানে যেখানে করা সম্ভব সেখানেই করব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কারণ সামনে কয়েকদিন ছুটি আছে, সোমবার মঙ্গলবার ছুটি আছে, এই উইক তো শেষ হয়ে গেল। সো বিফোর থার্সডে ফ্রাইডে নেক্সট উইক আমরা ফাইল করতে পারছি না। আমরা স্ক্রুটিনি করে দেখছি কোন কোন ক্লজগুলো বেশি হার্মফুল। আমরা যদি দেখি যে সব কটা ক্লজই আমাদের ক্ষতি করছে তাহলে সবটাকেই চ্যালেঞ্জ করব। কারণ দেখুন, সবটা এখন বলা হয়তো ঠিক হবে না। আমি অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা এবং একটা পড়ার পরে দেখেছি যে দু একটা প্রভিশন ছাড়া বাকি সবগুলোই কিন্তু আমাদের বেসিক এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটকে হিট করছে। আর্টিকেল 14, 15, 19, আর্টিকেল 21 এইগুলোকে হিট করছে। এগুলোকে যদি হিট করে আমার মনে হয় এইসবগুলো ডিক্লেয়ার করা উচিত बाय दी कोर्ट। अप्रोप्रिएट कोर्ट विल डिक्लेयर टू बी अल्ट्रा वायरस। जो पर्सनल स्टडी जब तक हम देखे हैं कि 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन সেখানে যে 3টে লিস্ট আছে, লিস্ট 1, লিস্ট 2, লিস্ট 3। লিস্ট 3 তো কনকারেন্ট লিস্ট
আমাদের কিন্তু এই ওয়াকফটা কোনো লিস্টেই নেই, কিন্তু যেভাবে হোক ওয়াকফ এসছে, ওয়াকফের ওপর সেন্ট্রাল লেজিসলেশন হচ্ছে, এটা হওয়া উচিত হয়নি। আর কনকারেন্ট লিস্টে থাকলেও আলাদা কথা, ট্রাস্ট আছে, রিলিজিয়াস এন্ডাওমেন্ট আছে, কিন্তু ওয়াকফ স্পেসিফিক্যালি কোথাও বলা নেই। আর ল্যান্ডটা তো স্টেট লিস্টেই আছে, ল্যান্ডটা স্টেট লিস্টে আছে, সুতরাং ল্যান্ডের ওপর স্টেটের জুরিডিকশন আছে। এবারে যেহেতু আমাদের স্টেট, আমাদের কনস্টিটিউশন ফেডারেল স্ট্রাকচার, সুতরাং যাই করুক না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেটের সঙ্গে কনসাল্ট করেই করা উচিত। जेपीसी में हम लोग जब गए तो बहुत सारी बातें उठी और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की मेजोरिटी थी। बीजेपी माने एनडीए की मेजोरिटी, और वहां पर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के जो लोग सब थे वो पूरा बीजेपी को सपोर्ट किए जेपीसी में। लिहाजा कुछ प्रोविजन हम लोग उसमें अपना डाल सके, लेकिन सब प्रोविजन नहीं हुआ। और जो बेसिक प्रोविजन जिसके हम लोग मांग कर रहे थे, जैसे ये 5 साल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 साल का भी जो प्रोविजन हो गया, ये वाकई ये मुस्लिम 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो लोग उल्टा इसको अब और खड़ा कर दिए कि नॉट ओनली प्रैक्टिसिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑल्सो, कि आपको ये दिखाना भी होगा कि आप मुसलमान हैं। तो इसके क्या माने, कि आपको दाढ़ी रखना होगा, क्या टोपी पहनना होगा, या कौन अथॉरिटी होगी ऐसी जो ये 5 साल का सर्टिफिकेट देगी। तो ये सरासर खाली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, खाली एंटी फेडरल नहीं है, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ, अनरीजनेबल। हाँ, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। और ये जैसे अब 5 साल का प्रोविजन हो गया, अब आप बताइए क्या एक नया वक़्फ़ बन सकेगा? कोई नहीं बना सकेगा जब तक उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि वो 5 साल तक प्रैक्टिस है। कोई नया वक़्फ़ मतलब वक़्फ़ बनाने का रास्ता पूरा बंद कर दिया। 5 साल का ये सर्टिफिकेट कौन देगा? यही तो मेरा सवाल है, आप हमसे कर रहे हैं। हमने तो वहां पर मंत्री जी से पूछा कि कौन देगा सर्टिफिकेट, वो तो अपने जवाब में नहीं बताया, और बीजेपी इस पर खामोश है। लिहाजा मेरा जो कहने का है कि ये सीधा एक पॉलिटिकल बिल है जो मुल्क को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करने का है, ताकि वो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट रीप कर सके। सीधा बात है। लीगल पॉइंट जो है हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इसको जो भी कोर्ट में हायर अथॉरिटी में इसको चैलेंज करेंगे, और इसके लिए हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्यों किया, कौन सर्टिफिकेट देगा, अभी क्या होगा, नया वक्त बनना बंद हो गया। देखिए, कानून जब बन जाता है पूरे देश के लिए बनता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो ममता बनर्जी अगर बोलिए तो हम लोग को उस पर भरोसा रखना हो, तो हमारा जायज हक है। अगर आप हमको मारिएगा तो हम रोएंगे नहीं क्या? यकीनन रोएंगे, और रास्ते में उतर के रोएंगे। जो लोग कर रहे हैं, अगर रास्ते में उतर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, देखिए पीसफुल तरीके से करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं उनसे अपील करूंगा कि अपनी आवाज उठाए, जरूर प्रोटेस्ट करें, हर जगह उसके दिखाना चाहिए कि हम लोग को इस बिल से आघात हुआ है, हम लोग को चोट लगी है, हम लोग के दिल में लगा है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले। ये जो आगजनी हो रही है और जो लोगों को तकलीफ हो रही है, इसका भी ध्यान दें। जाहिर है कि इसमें हुकूमत का मंशा साफ नहीं है, और वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इस सिलसिले में परेशान किया जाए। तो जो कानूनी पेचीदगी है, इसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल तो अब बन गया है और बिल वापस होने से रहा, लेकिन उसके अंदर जो खराबियां हैं उसको हम लोग कोशिश करके हटवा सकते हैं, अगर हम लोग कोशिश करें। तो आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि प्रेस को बुलाना चाहिए और मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड को इस सिलसिले में कदम उठाना चाहिए। तो उसी कदम उठाने के सिलसिले में ये पहली कड़ी है कि आप लोगों से हम मुखातब हैं, और हमारे चेयरमैन साहब भी और हमारे बोर्ड के अरकान भी, कि हम लोग इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या कलकत्ता हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और वहाँ हम लोग अपनी अर्ज़ी दायर करेंगे कि भाई हमें ये बिल मंजूर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि इससे सिवाय खराबी के हमें कहीं कोई भलाई दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसा कि अभी हमारे अफाकुद्दीन साहब ने बताया कि एक ही एक्ट में 2 चीज़ें हैं, एक है भी और एक नहीं भी है। ये कैसे हो सकता है?
इतनी बड़ी गवर्नमेंट कानून बना रही है और उसके इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो वो इस तरह से बच्चों का खेल क्यों बना दिया इसको? ये अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह से खिलवाड़ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टी के साथ। लिहाजा हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसमें जो भी नकाइस हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत से भी अपील करते हैं कि दोबारा आप इस पर नज़रसानी कीजिए और इसमें जो भी गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जा सकती है, मस्जिदों पर, दरगाहों पर, मदारिस पर आँच आ सकती है, ये इदारे ख़त्म हो सकते हैं या मिट सकते हैं, ऐसी चीज़ों को उसमें से रोकना चाहिए। इसलिए हम पुरजोर अपील करते हैं अपनी हुकूमत से। ममता बनर्जी से भी हमने ये अपील की है इससे पहले के कॉन्फ्रेंस में कि आप बराए मेहरबानी बंगाल के असेंबली में कानून लाइए, बिल लाइए और इस बिल को असेंबली में रिजेक्ट करवाइए, जैसा कि तमिलनाडु ने किया है, कर्नाटका ने किया है और दो एक जगह में हुआ है ऐसा कि उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बंगाल में भी हमारी ममता बनर्जी साहिबा इस बिल को रिजेक्ट करवाएं। सबसे पहली बात है, जो 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुसलमान के बाद जो हुई है, उसमें जेपीसी के सामने मैंने एक बात कहा था। जो बात नदीम भाई बोले वो तो बात है अपनी जगह में। इसके अलावा ये एक्ट होने के बाद कोई भी, देखिए, वक़्फ़ प्रॉपर्टी 2 किस्म की होती है। एक है मूवेबल, एक होता है इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, जायदाद, तालाब, खेती। मूवेबल मतलब हुआ रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो मज़ार वगैरह में दिया जाता है। दोनों वक़्फ़ है, मूवेबल इमूवेबल दोनों। तो ये 5 साल का जो मसला है, इसमें अब सारे मज़ार में ये लिखना पड़ेगा, कोई भी नॉन मुस्लिम मज़ार में जाके और डोनेट नहीं कर पाएगा, चादर नहीं चढ़ा पाएगा, रुपया नहीं दे पाएगा, जो मतलब आमतौर में हुआ करता है। इसका वजह क्या है कि वो 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। और हम लोग को ये पूछना पड़ेगा, भैया आप है मुसलमान 5 साल का, तो आप आके यहाँ पर डोनेट करिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत गलत चीज़ हुई है। दूसरी बात है, लिमिटेशन एक्ट के बारे में सोसाइटी में एक बहुत मैंने दूसरी तरह का एक मैसेज किया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी कब्ज़ा में है 12 साल से ज़्यादा, वो और वक़्फ़ नहीं रहेगा। 1995 से पहले लिमिटेशन एक्ट जो था वो लागू था वक्फ प्रॉपर्टी पर भी। 95 से पहले जो एक्ट था वक़्फ़ का, क्या था वो? वक़्फ़ प्रॉपर्टी में 12 साल से ज़्यादा कोई अगर बस गया विदाउट एनी अथॉरिटी, ऐसे ही बस गया, कब्ज़ा कर लिया, तो वो प्रॉपर्टी सेकुलर हो जाएगा। 95 में वो एक्ट का अमेंड किया गया, वो सेक्शन को हटा दिया गया कि लिमिटेशन एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द वक़्फ़ प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छी बात हुई। अभी का सरकार ने क्या किया है, इसको लिमिटेशन एक्ट को फिर लागू कर दिया है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होगा। इसमें कन्फ्यूजन ये है कि लोग सोच रहे हैं कि जो 12 साल ऑलरेडी जो ज़्यादा हो गया है वो और वक़्फ़ नहीं रहेगा। नहीं, वक़्फ़ एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। मतलब ये बिल जिस रोज आया 8 तारीख, आज के बाद से 12 साल, तो सारे लोगों को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपके ज़रिए में कि कोई भी अगर किसी जगह में काबिज़ है तो या तो उससे सेटलमेंट करके उससे रेंट लीजिए ताकि वो लीगलाइज्ड हो जाए, या उसके ऊपर में केस करिए कोर्ट का। तो फिर ये 12 साल क्या 1200 साल भी अगर हो जाए तो ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी ही रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है करना। और सेम एक्ट में 2 तरह का चीज़ हुआ। देखिए, एक हुआ लिमिटेशन को उठा दिया इन लोग, मतलब जो एप्लीकेशन होगा लिमिटेशन के ज़रिए में वक़्फ़ प्रॉपर्टी सेकुलर हो जाएगा, लेकिन वक़्फ़ बाय यूज़र जो 12 साल क्या अगर 1000 साल भी अगर हम उसमें काबिज़ है और अगर वो इनरोल्ड नहीं है तो और वक़्फ़ नहीं रहेगा। सेम एक्ट में 2 तरह का चीज़ हुआ।
वक्फ बाय यूज़र वक़फ़ और नहीं रहेगा अगर वो एनरोल्ड नहीं है, और लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होगा वक़फ़ प्रॉपर्टी में, सेकुलर हो जाएगा। दोनों उल्टा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो सारे लोगों को जानना चाहिए। ये देखिए, हर आदमी को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का उसको हक है। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि वक्फ बोर्ड अपने कदम उठाए। हो सकता है हमारे बंगाल के इस कदम को देखकर है ना दूसरे स्टेट्स के भी है ना वक्फ बोर्ड भी हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हौसला बढ़ेगा बहरहाल इन लोग का। तो इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। अभी जो कानून आया है उस कानून के बारे में, जैसे एक के बारे में आपने मुख्तलिफ बातों पे आपने गौर किया होगा, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा, मेंबर्स साहब ने भी कहा, इसमें एक और एक्ट आया है जिसमें बोहरा हजरात और आगा खानी ये दोनों को आपने ना उसमें इंक्लूड किया है कि वो भी मेंबर रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि उनके स्टेट्स कितने हैं, और कहाँ कहाँ है, ये वो लोग को नहीं मालूम था। ऑब्वियसली ये एज अ मेंबर उनको बैठा लेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि ना आप भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को इनरोल कराइए, और इनरोल कराने के बाद वही हाल होगा वक्फ की स्टेट्स का और वक्फ की ज़मीनों का जो है ना हम लोग के साथ हो रहा है, वो आगा खानी और बोरा हजरात के साथ भी सेम टू सेम होगा। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।